بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحییٰ بن سعید انصاری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ فرما چکے تھے کہ 2 لکڑیاں لے لیں جن کو ایک دوسری کے ساتھ ضرب لگائی جائے جس سے آواز پیدا ہو کر لوگوں تک پہنچے تاکہ لوگ نماز کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن ہوا یوں کہ اتنے میں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد الربہ انصاری رضی اللہ عنہ جو بنو حارث بن خزرج خاندان سے تھے، انہیں خواب میں 2 لکڑیاں دکھائی گئیں تو انہوں نے کہا، بے شک یہ دونوں تو بالکل اسی طرح کی ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ رکھتے ہیں۔ تو کہا گیا، کیا تم نماز کے لیے آذان نہیں کہتے؟ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب کہ بیدار ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مکمل خواب کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آذان کا حکم فرما دیا۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 145۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم آذان سنو تو اسی طرح کہا کرو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 146۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو وہ اجر و ثواب اور فضیلت معلوم ہو جائے جو آذان دینے اور صف اول میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے میں ہے، پھر وہ اس فضیلت کے حصول کے لیے اور کوئی طریقہ نہ پائیں سوائے اس کے کہ ان کو قرآن اندازی کرنا پڑے تو ضرور وہ قرآن بھی ڈال لیں۔ اور اگر لوگوں کو وہ اجر و ثواب معلوم ہو جائے جو ظہر کی نماز کی طرف چلنے یا نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے میں ہے تو وہ اس کی طرف ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگیں۔ اور اگر لوگ اس عظیم ثواب کو جان لیں جو نماز عشاء اور نماز فجر باجماعت ادا کرنے میں ہے تو وہ ضرور ان دونوں میں پہنچیں، اگرچہ ان کو گھٹنوں یا سرینوں کے بل گھسٹ کر آنا پڑے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 147۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو نماز کی طرف اس حالت میں نہ آؤ کہ تم دوڑ رہے ہو، بلکہ اس طرح نماز کو آؤ کہ تم سکینت و اطمینان کو لازم پکڑے ہوئے ہو۔ پھر تم جو حصہ نماز امام کے ساتھ پالو اسے جماعت کے ساتھ پڑھ لو، اور جو کچھ تم سے رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ نماز کی طرف دوڑ کر آنا ممنوع ہے، کیونکہ بلا شبہ جب تم میں سے کوئی نماز کی طرف آنے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا قصد کر لیتا ہے تو وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 148۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی صعصعہ انصاری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل یعنی کہ جنگل کی زندگی سے محبت رکھتے ہو، لہٰذا جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہو اور نماز کے لیے اذان دینے لگو تو اذان کے ساتھ اپنی آواز کو خوب بلند کیا کرو، کیونکہ مؤذن کی آواز کی انتہا تک جو کوئی جن اور انسان یا کوئی بھی دوسری چیز اسے سنتی ہے وہ ضرور قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گی۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 149۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے آذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر اس حال میں بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا آواز کے ساتھ نکل رہی ہوتی ہے، پھر اتنی دور جگہ چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آذان کی آواز اسے سنائی نہیں دیتی۔ پھر جب آذان پوری ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے وہ پھر پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، حتیٰ کہ جب اقامت پوری ہو جاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے اور آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو کر وسوسہ ڈالنے لگتا ہے۔ آدمی سے کہتا ہے کہ فلاں چیز کو یاد کر، فلاں چیز کو یاد کر، ان چیزوں کے بارے میں وسوسے ڈالتا اور یاد کراتا ہے جو آدمی کو یاد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ آدمی کا حال ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں جانتا اور یہ بھی یاد نہیں رکھ پاتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔
मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 150। हजरत सहल बिन साद साइदी रजी अल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि उन्होंने कहा, दो घड़ियां यानी दो औकात ऐसे हैं कि उनमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और बहुत कम यानी ना होने के बराबर हैं ऐसे दुआ मांगने वाले कि उन सातों में भी उनकी दुआ उन पर रद्द कर दी जाती हो। एक तो नमाज के लिए दी जाने वाली अजान का वक्त है और दूसरा अल्लाह की राह में जिहाद के लिए सफ बंदी का वक्त है। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 151। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह से जुमा के दिन अजान के मुताल्लिक सवाल किया गया कि क्या वो वक्त शुरू होने से पहले हो सकती है, तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, जुमा की अजान सूरज ढलने और जवाल हो जाने के बाद ही हो सकती है। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 151। इमाम मालिक रहमहुल्लाह से अजान और इकामत को दोहरा कहने के मुताल्लिक सवाल किया गया और ये भी पूछा गया कि जब नमाज के लिए इकामत कही जाती है तो लोगों पर खड़े होना कब वाजिब होता है, क्या इकामत से पहले या शुरू होते ही या कद कामत इस सलाह पर। तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया, आजान और इकामत के बारे में मुझे कोई हदीस तो नहीं पहुंची, मगर मैंने उसे शहर मदीना के लोगों को जिस तरीके पर पाया है वही जानता हूं। रही इकामत तो उसे दोहरा नहीं कहा जाएगा और यही है वो अमल जिस पर हमारे शहर के अहले इल्म हमेशा से कायम है। रहा लोगों के उस वक्त खड़े होने का मसला जबकि नमाज की इकामत होने लगे, तो यकीनन मैंने उसके मुताल्लिक भी कोई ऐसी हदबंदी नहीं सुनी जिसको मुतय्यन करके उसी वक्त ही खड़ा हुआ जाए। मगर मेरी इस बारे में राय ये है कि ये मामला लोगों की ताकत और सहूलत पर मुनहसिर है, क्योंकि बिलाशुबा उनमें से कुछ भारी बदन वाले होते हैं जो जल्दी खड़े नहीं हो सकते और कुछ हल्के होते हैं, और बहरहाल वो तमाम के तमाम ये ताकत नहीं पा सकते कि एक ही शख्स की तरह खड़े हो जाए। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 151। इमाम मालिक रहमहुल्लाह से ऐसे लोगों के बारे में सवाल किया गया जो मुकीम हो, मुसाफिर ना हो, वो ये इरादा करें कि फ़र्ज नमाज को जमात के साथ पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने चाहा कि सिर्फ इकामत कह लें और आज़ान न दें, तो क्या ये दुरुस्त है? तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया, ये अमल उनसे किफ़ायत कर जाएगा। अगरचे मुस्तहब तो यही है कि वो आज़ान कहकर इकामत कहें और जमात करवाएं, और आज़ान कहना तो सिर्फ और सिर्फ उन जामे मस्जिदों में वाजिब है जहां जमात के साथ नमाज अदा की जाती हो। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 151। इमाम मालिक रहमहुल्लाह से सवाल किया गया कि मुअज्जिन का आज़ान के बाद जाकर इमाम को सलाम कहना और उसे नमाज के लिए बुलाना कैसा है, और सबसे पहले वो कौन सा शख्स था जिस पर इस तरह सलाम किया गया। तो इमाम साहब रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि बेशक मुझे ये खबर नहीं पहुंची कि पहले दौर यानी दौर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असरे सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम में मुअज्जिन की तरफ से इस तरह इमाम को सलाम कहा जाता हो। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 151। इमाम मालिक रहमहुल्लाह से इस मुअज्जिन के मुताल्लिक सवाल किया गया जिसने लोगों को बुलाने के लिए अजान कही, फिर वो इंतजार में रहा कि क्या कोई शख्स उसके पास आता है या नहीं, तो कोई भी उसके पास मस्जिद में ना आया। चुनाचे उसने खुद ही इकामत कहकर अकेले ही नमाज अदा कर ली। फिर उसके नमाज से फारिग हो जाने के बाद लोग आए, तो क्या वो मुअज्जिन उनके हमराह नमाज को दोहराएगा? तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने जवाब दिया, वो नमाज को दोबारा नहीं पढ़ेगा और उसके सलाम भियर लेने के बाद जो भी आएगा वो अपने लिए अकेला ही नमाज अदा करेगा। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 151। इमाम मालिक रहमहुल्लाह से इस मुअज्जिन के बारे में पूछा गया जिसने लोगों के लिए आज़ान दी, फिर नफल पढ़ने लगा। इस दौरान लोगों ने इरादा कर लिया कि उसके अलावा किसी और शख्स से इकामत कहलवा कर नमाज बाजमात शुरू करके पढ़ लें। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने जवाब दिया कि इसमें कोई हरज नहीं, उस मुअज्जिन की और उसके अलावा की इकामत बराबर का दर्जा रखती है। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 151। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया, हमेशा ही से सुबह की नमाज के लिए फजर से पहले आज़ान कही जाती रही है। रही फजर के अलावा बाकी नमाजें, तो यकीनन हमने नहीं देखा कि उनका वक्त आने से कबल आज़ान कही जाती हो। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 151।
इमाम मालिक रहमहुल्लाह अपने चचा अबू सुहैल रहमहुल्लाह बिन मालिक से और वो अपने बाप मालिक रहमहुल्लाह बिन अबी आमिर अज़बही रहमहुल्लाह से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा, जिन चीज़ों पर मैंने लोगों यानी सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को अमल करते हुए पाया था, मैं उनमें से किसी चीज़ को अब उसकी असली हालत पर बाकी नहीं देख रहा सिवाय नमाज की पुकार के यानी आज़ान के। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 153। नाफे रहमहुल्लाह से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने मस्जिद की तरफ आते हुए इकामत की आवाज़ सुनी। उस वक्त वो बकी यानी जगह में थे जो मस्जिद से थोड़ा सा पीछे है, तो उन्होंने मस्जिद की तरफ तेज चलना शुरू कर दिया। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 154। नाफे रहमहुल्लाह से रिवायत है कि बेशक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा ने एक ऐसी रात में नमाज के लिए अजान दी जो सर्दी और आंधी वाली थी, तो उन्होंने अजान के साथ ही ये भी कहा, अला सल्लू फिर रिहाल, खबरदार अपने अपनी क़याम गाहों में नमाज अदा कर लो। फिर इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा ने दलील के तौर पर कहा कि यकीनन जब कोई रात ठंडी और बारिश वाली होती तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज़िन को हुक्म देते कि वो अला सल्लू फिर रिहाल कहे। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 155। नाफे रहमहुल्लाह से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा सफ़र के दौरान इकामत से ज़्यादा कुछ ना करते थे, यानी सिर्फ इकामत कहकर नमाज पढ़ लेते और आज़ान ना कहते थे सिवाय फजर के। उसमें वो आज़ान भी कहते और इकामत भी कहते थे, और वो फरमाते कि आज़ान तो सिर्फ और सिर्फ उस इमाम के लिए है जिसकी तरफ लोग आते और जमा होते हैं। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 156। हिशाम बिन उरवा रहमहुल्लाह से रिवायत है कि उनके वालिद उरवा रहमहुल्लाह ने उनसे कहा कि जब तू सफ़र में हो तो अगर तू आज़ान और इकामत दोनों को कहना चाहे तो कह लेना, और अगर तू चाहे तो सिर्फ इकामत कह लेना और आज़ान न देना। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 157। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया, इस बात में कोई हर्ज नहीं कि आदमी सवारी पर सवार हालत में अजान कहे। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 157। सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह से रिवायत है, वो कहा करते थे कि जो शख्स किसी सहराई ज़मीन में यानी सहरा में या जंगल में अकेला ही नमाज पढ़ता है और आज़ान व इकामत नहीं कहता, तो एक फरिश्ता उसके दाएं जानिब और एक फरिश्ता उसके बाएं जानिब नमाज अदा करता है, और अगर वो आज़ान और इकामत भी कह ले तो उसके पीछे पहाड़ों की मानिंद कसरत से फरिश्ते नमाज अदा करते हैं। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 158। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा बिलाल रात को अजान देते हैं, लिहाजा तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम अजान कहें। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 159। सालिम बिन अब्दुल्ला रहमहुल्लाह से रिवायत है कि बिलाशुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बिलाल रात ही में आज़ान देते हैं, क्योंकि सहरी और तहज्जुद का वक्त रात ही का आखिरी हिस्सा है, लिहाजा तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि इब्ने उम्मे मक्तूम फजर की आज़ान कहें तो खाने पीने से रुक जाओ। सालिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु नाबीना शख्स थे और वो खुद बखुद आज़ान नहीं कहते थे, यहाँ तक कि उनको बता दिया जाता कि आप सुबह के वक्त में दाखिल हो गए हैं, आपने सुबह कर ली है। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 160। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि बिलाशुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते थे तो रफ़े यदैन करते थे, दोनों हाथों को कंधों के बराबर तक बुलंद फरमाते, और जब रुकू से सर उठाते तो भी दोनों हाथों को उसी तरह बुलंद फरमाते और समे अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते, यानी अल्लाह ने उस शख्स की हम्द को सुन लिया जिसने उसकी हम्द बयान की, ऐ हमारे रब तेरे ही लिए हर हम्द है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में ऐसा न करते, न सजदे को जाते वक्त रफ़े यदैन करते और न सजदे से उठते वक्त। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 161। अली ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह, जो कि हज़रत हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हुमा के लख्ते जिगर हैं, से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में जब भी झुकते और जब भी उठते तो अल्लाहु अकबर कहते थे। फिर मुसलसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही नमाज जारी रही यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हो गए।
मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 162। सुलेमान बिन यसार रहिमहुल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में रफ़े यदैन किया करते थे। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 163। अबू सलमा रहमहुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ से रिवायत है कि यकीनन हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु जब उनको नमाज पढ़ाते तो जब भी झुकते और जब भी उठते तो अल्लाहु अकबर कहा करते थे। फिर जब नमाज से फारिग होते तो फरमाते कि अल्लाह की कसम, बेशक मैं तुम में सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से मुशाबिहत रखने वाला हूँ। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 164। सालिम बिन अब्दुल्ला रहमहुल्लाह से रिवायत है कि बेशक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा नमाज में जब भी झुकते और उठते थे तो अल्लाहु अकबर कहते थे। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 165। नाफे रहमहुल्लाह से रिवायत है कि यकीनन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा जब नमाज शुरू करते तो अपने हाथों को अपने कंधों के बराबर बुलंद करते थे और जब रुकू से सर उठाते तो हाथों को उससे जरा नीचे तक बुलंद करते थे। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 166। अबू नुआइम वहब बिन कैसान रहिमहुल्लाह से रिवायत है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हुमा उनको नमाज में अल्लाहु अकबर कहना सिखाया करते थे। अबू नुआइम रहिमहुल्लाह कहते हैं कि वो हमें हुक्म दिया करते थे कि हम जब भी नमाज में झुकें और जब भी उठें तो अल्लाहु अकबर कहा करें। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 167। इब्ने शहाब ज़ुहरी रहमहुल्लाह से रिवायत है, वो कहते थे कि जब आदमी इमाम के साथ इमाम के सर उठाने से पहले रुकू पा ले, फिर वो मुक्तदी एक तकबीर यानी अपनी नमाज शुरू करते वक्त अल्लाहु अकबर कह ले और इमाम के साथ रुकू में शिरकत कर ले तो वो तकबीर उस आदमी की तकबीर तहरीमा के तौर पर उससे काफ़ी हो जाएगी। मुवत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 168। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ने फरमाया, हमारे यहाँ ये तब काफ़ी होगी जब वो उस तकबीर से नमाज के आगाज़ वाली तकबीर तहरीमा की नीयत भी करे। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 168। इमाम मालिक रहमहुल्लाह से उस शख्स के मुताल्लिक सवाल किया गया जो इमाम के साथ नमाज में दाखिल हुआ और आगाज़ वाली तकबीर यानी तकबीर तहरीमा और रुकू वाली तकबीर कहना भूल गया, यहाँ तक कि उसने पूरी रकात अदा कर ली। फिर उसे याद आया कि उसने तो तकबीर तहरीमा भी नहीं कही और ना रुकू वाली तकबीर कही है। चुनाचे उसने दूसरी रकत में तकबीर कह ली तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया कि वो नमाज को नए सिरे से शुरू कर ले तो ये मुझे ज़्यादा महबूब और मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता अगर आदमी इमाम के साथ तकबीर तहरीमा भूल गया हो लेकिन उसने पहले ही रुकू में जाते वक्त तकबीर कह ली हो तो मैं समझता हूँ कि ये उससे किफ़ायत कर जाएगी और ये भी उसी सूरत में काफ़ी होगी जब वो उस तकबीर रुकू के साथ तकबीर तहरीमा की नीयत करे। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 168। इमाम मालिक रहिमुल्लाह ने उस शख्स के मुताल्लिक फरमाया जो अपने लिए यानी अकेला ही नमाज पढ़ता है और तकबीर तहरीमा भूल जाता है तो वो नए सिरे से नमाज का आगाज करे। मुवत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 168। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने इस इमाम के मुताल्लिक फरमाया जो तकबीर तहरीमा भूल जाए यहाँ तक कि मुकम्मल नमाज पढ़कर इससे फारिग हो जाए। फरमाया कि मेरी राय ये है कि वो खुद भी नमाज का इआदा करेगा और जो उसके पीछे मुक्तदी नमाज पढ़ने वाले हों वो भी नमाज को दोहराएंगे। अगरचे उन्होंने तकबीर तहरीमा कही हो वो फिर भी नमाज लौटाएंगे। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 168। हज़रत जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मगरिब में सूरह तूर की तिलावत फरमाई। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 169। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उनकी वालिदा उम्मुल फ़ज़ल बिनते हारिस रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने उनको सूरह वल मुस्सलाते उर्फ़ा पढ़ते हुए सुना तो उनसे कहने लगीं, ऐ मेरे प्यारे बेटे, तूने ये सूरत पढ़कर मुझे याद दिला दिया कि यकीनन यही वो आखिरी सूरत है जिसे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी वफ़ात से पहले सुना था।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नमाज मगरिब में पढ़ा था। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 170। अबू अब्दुल्ला यानी अब्दुर रहमान बिन उसैला सुनाबही रहमहुल्लाह से रिवायत है, कहते हैं कि मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के दौरे खिलाफत में मदीना मुनव्वरा आया तो मैंने उनके पीछे नमाज मगरिब अदा की। उन्होंने पहली दोनों रकतों में सूरह फातिहा और क़िसार मुफस्सल में से एक एक सूरत पढ़ी। फिर वो तीसरी रकत में खड़े हुए तो मैं उनके इतना नज़दीक हुआ कि करीब था कि मेरे कपड़े उनके कपड़ों को छूने लगे। चुनांचे मैंने सुना कि उन्होंने सूरह फातिहा भी पढ़ी और ये आयत भी पढ़ी, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न करना और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, यकीनन तू ही बड़ा अता करने वाला है। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 171। नाफे रहीमहुल्लाह से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से जब अकेले ज़ोहर व असर की नमाज अदा करते तो तमाम की तमाम चारों रकतों में से हर रकत में सूरह फातिहा और कुरान मजीद की कोई और सूरत भी तिलावत करते, और कभी कभार फर्जी नमाज की एक रकत में 2 और कभी 3 सूरतें पढ़ते, और मगरिब की पहली 2 रकतों में भी इसी तरह सूरह फातिहा और एक एक सूरत पढ़ते। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 172। हजरत बरा बिन आजिब रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज इशा अदा की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें सूरह वत्तीन व जैतून की तलावत की। मुवत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 173। हजरत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि यकीनन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशमी धारियों वाले कपड़े, कुसुम से रंगे हुए कपड़े और सोने की अंगूठी पहनने से और हालत रुकू में कुरान मजीद की तिलावत करने से मना फरमाया। मुवत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 174। हजरत फरवा बिन आम्र बियाजी रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के पास आए और वो यानी लोग नमाज पढ़ रहे थे और क़िराअत के साथ उनकी आवाज़ें बुलंद हो चुकी थीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन नमाजी अपने रब से सरगोशी कर रहा होता है, लिहाजा उसे देख लेना चाहिए कि वो किस अंदाज और किन अल्फाज के साथ अपने रब से सरगोशी करता है, और तुम में से कोई भी कुरान पढ़ने के वक्त में किसी दूसरे पर आवाज़ बुलंद न करे। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 175।